Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing well, having a great day today. Um, I am Professor Farida Amin, and a lot of you must be knowing me. You have a chat box option on your screen, and I would suggest that all of you please look at it, the chat box, and any question you would like to ask me, anything about family medicine as we go along, and as I explained to you the career options in family medicine in Pakistan and internationally as well. I would ask you to if you have any queries, if you want to ask any question, you can just ask in the chat box. I would request you not to switch on your audios because it sometimes creates disturbance, and sometimes आप लोग की line clear नहीं होती है और उसमें delay हो जाता है. So I don't know. I mean, I am not really sure if I know you all. This is a new group. How much do I know you? So it would be just very, very good if you can just write in the chat box, your name, and if you're practicing somewhere. It's not necessary. I know a lot of people want to come back into practice. बहुत सारी हमारी females हैं जो out of practice हैं, and who would want to come back into general practice specifically. So that they can have a work life balance as well. So I know that आप लोग जरूरी नहीं है कि काम कर रहे हो इस वक्त as a doctor, but can you please write in your chat box and who your name and if you are practicing and where you are practicing. Fawzia Farah, I think I know you. Dr. Shabana, I'm not really sure. Maybe you've attended a few session of mine. I remember your name though. Hello, Ali Raza. Assalamu alaikum. Okay, so some people preparing for talks, some people appearing for MCPS, some people just exploring a career in family medicine, and it's good to have, all types of people and everybody in here. Um, how to attempt paper, how to attempt MCPS. Yes, Sarish, I remember you. Shabana has taken a course with me. डॉक्टर अली ने मेरे बारे में बहुत सुन रखा है. डॉक्टर सफिया इज अ मेडिकल ऑफिसर. सो सफिया, Mehak, is Kavita, will Kavita be able to join us? She was a medical officer in a government setup, and Alhamdulillah, she passed her MCPS in her first attempt. She passed her MRCGP in her first attempt, and she got a very good job in Dubai, and now she's practicing in Dubai. So she was one of our family medicine students, and she entered family medicine just the way all of you and a lot of you are trying to enter. So she's a success story of somebody who's tried to get into family medicine and was successful. So generally, आज से 3 4 साल 5 साल पहले यही समझ नहीं आता था कि whether there's a difference between a GP and a family physician. So what do you all think? Are you now clear that there is a difference? So ये इसका आंसर बताएंगे, ट्रू फॉल्स? जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक. वालेकुम अस्सलाम, Eamon. Have you attended our previous courses, or are you trying to get into practice? So this is false. Of course, there is a difference. General practitioner वो होता है जो MBBS के बाद उसको practice करने मिलती है. I would say sometimes license to kill मिलता है. और family medicine वो होता है जो कि specialty होती है, just like any other specialty, just like general surgery, just like internal medicine, just like OBGYN. बिल्कुल एक specialty है family medicine, and throughout the world, specifically in the West, and now in a lot of other countries as well, UAE, Saudi, हर जगह पर family medicine is the first point of contact for the patient. और government जितने भी जो है वो primary care को sponsor करती है, insurance देती है, वो family medicine के through होके गुजरना जरूरी होता है patient. ठीक है? So there is a difference. General practitioner is just a general practitioner, और जो इनमें से कोई भी स्पेशलिटी पाथवे के थ्रू जाते हैं वो हमारे बन जाते हैं फैमिली फिजिशियंस. और फैमिली फिजिशियंस के लिए पाकिस्तान में जो पाथवे मौजूद है, FCPS, MCPS, MRCGP इंटरनेशनल, नॉट यूके. MRCGP इंटरनेशनल का पाथवे है
पाकिस्तान में। ठीक है, मैं आप लोगों को सारे पाथवेज के बारे में बताऊंगी। इसके बाद वाला पाथवे है अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली मेडिसिन, ये यूएस में है। FRACGP इज इन ऑस्ट्रेलिया। और बाकी कुछ पाकिस्तान में डिप्लोमा है फैमिली मेडिसिन के, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, दे आर ऑल द सेम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, you know, family practice, certificate and essentials, and there's so many names. हमारा इंडस में होता है फैमिली मेडिसिन प्रैक्टिस ट्रेनिंग, ये सब एक तरह के हैं। ये 1 ईयर के जनरली ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। जस्ट टू गेट योर सेल्फ इन फैमिली मेडिसिन यू कैन चूज दिस। अगर आपने बहुत साल से प्रैक्टिस नहीं की है तो एक अपनी बेस बनाने के लिए फैमिली मेडिसिन में यू कैन टेक दिस। लेकिन इसके आगे आपको कुछ करना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्टॉप हियर, क्योंकि इसके थ्रू आपको कहीं पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एज अ फैमिली फिजिशियन जॉब नहीं मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर की जॉब तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप करते ही होंगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर फैमिली मेडिसिन के नाम से जॉब नहीं मिलेगी इफ यू आर अ डिप्लोमा। सो डिप्लोमा यू कैन जस्ट बिल्ड अप फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फाउंडेशन, उसके ऊपर फिर आपको तामीर करनी पड़ेगी अपनी बिल्डिंग। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट एंट्री. The only difference between internal medicine and family medicine is an inpatient setting in internal medicine and OPD setting in family medicine. Is this true or false? What do you all think? क्या ख्याल है? और जो लोग अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, जो लोगों को शायद अभी तक भी फैमिली मेडिसिन का क्रक्स और कंसेप्ट समझ नहीं आया है, आई थिंक कि ये वाले जो सवाल है ना, ये आप लोगों को हेल्प करेंगे इन बिल्डिंग योर फाउंडेशंस। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू नहीं है। इंटरनल मेडिसिन, यस, हॉस्पिटलिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल मेडिसिन से डील करते। फैमिली मेडिसिन मोस्टली प्राइमरी केयर में डील करते। बट इसके अलावा भी उनका डिफरेंस ये है कि फैमिली फिजिशियंस वो होते हैं जो पेशेंट्स के एडवोकेट्स होते हैं, जस्ट लाइक देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, हम हर लेवल पे जाके पेशेंट के हक में जो है वो उनके बेनिफिट में वी ट्राई आवर बेस्ट कि उनका जो है वो किस तरीके से हम किन किन एरियाज में साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली एंड सोशली उनको जो है वो वेलबींग के लिए वी कैन वर्क। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव मेडिसिन, इट इंक्लूड्स diagnostic medicine, it includes curative medicine, and it includes rehabilitative medicine. सारे aspects जो है वो person centered care के थ्रू हम पेशेंट को देते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो मुन्ना भाई MBBS या पैच एडम्स, so you know कि how it is important to connect to your patient as a person and not as a disease. If you remember, उसमें क्या था, ये subject जो है, सब्जेक्ट. So what issues did the hero have with that? He said ये क्या सब्जेक्ट लगा के रखा है, इनका नाम नहीं है. That is something जो फैमिली मेडिसिन का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि we connect to the patient as a person, not as a disease. ठीक है, for us every patient is a human being, not a disease. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फैमिली मेडिसिन का तमाम दूसरी स्पेशलिटीज के साथ कि वी प्रोवाइड पर्सन सेंटर्ड केयर। ठीक है, एंड इफ यू आर अनेबल टू प्रोवाइड पर्सन सेंटर्ड केयर तो फिर फैमिली फिजिशियन या फैमिली मेडिसिन की स्पेशलिटी में यू हैव नॉट एंटर्ड इन द राइट वे। ठीक है, सो ये एक मैं आप लोगों को फाउंडेशंस बता रही हूँ। सो नाउ कमिंग टू some family medicine approach कितनी डिफरेंट होती है। let's look at a case. ठीक है, और एक ये केस प्राइमरी केयर का केस जो कि हमारे में से बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में कभी ना कभी जरूर देखा होगा. आई एम श्योर दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी अनकॉमन. So this is a 35-year-old female, para 2, presents referred by a neurologist with left-sided upper limb weakness and limping for the last few months. लिम्प कर रही है, लेफ्ट अपर लिम्ब वीकनेस हो रही है. उसके सीबीसी, लिपिड्स, ब्लड शुगर, एको, एमआरआई ब्रेन, ईएमजी, नर्व कंडक्शन, सीपीके, ईएसआर, सीआरपी, एएनए, everything is normal, and she has been seen by an internist, she has been seen by a rheumatologist, she has been seen by a neurologist. On examination, she is unable to move her left upper arm and power of the left lower limb is 3/5. All sensations and reflexes are normal. ठीक है,
थायराइड was normal as well. ठीक है, TSH भी normal है patient का. And why would somebody have a focal neurological problem with a thyroid problem? Right? So कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें अब आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है? आई एम श्योर उसको ऑर्गेनिक वे में हर तरीके से जो है वो एक्सप्लोर किया जा चुका होगा. जब इतने सारे स्पेशलिस्ट ने मिलके उसको देखा है, इतने सारे टेस्ट कराए हैं, तो उसका सारा का सारा बायोलॉजिकली तो उसको खंगाल लिया होगा, है ना? What is left? Maybe somebody has not looked at the biopsychosocial model of disease. So this was actually a patient who came to me, and after exploring her history, I was pretty sure what is her issue. So her father actually had a stroke. Just before she developed symptoms, her father had a stroke, and with the similar complaints, ekdam similar complaints themes. Yes, Irha, you're absolutely right. So he had she had similar, the father had similar complaints, and this is a patient who became so emotionally unstable after, his father developed these symptoms and he passed away with it, that, she thought that she's having the same symptoms, and when I explored it more, there was a lot of emotional instability, low mood, loss of interest, crying spells, and it had a lot to do with her psychological state of mind than her biological state of mind. And after, treating her, examining her, exploring her psychosocial history, so eventually, I realized that this patient has a lot of psychological issues. Yes, I referred her to for CBT, and then eventually I gave her some antidepressants, and she became better. She started improving. She started realizing. So it was a conversion disorder, right? And conversion disorder is a disorder in which, the patient doesn't know what's going on with him or her, but the neurological, and it presents with some sort of a neurological problem which is not explained otherwise. So there are so many medically unexplained symptoms which can only be explained once you explore the biopsychosocial model of disease. So it's so important. So this is just one case highlighting it, but not necessarily, the patient can present with this, the patient has various symptoms, है ना? कितने सारे पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर शॉपिंग करके जगह जगह जो है वो दिखा रहे होते हैं, और जगह जगह, लेकिन they just cannot be healed. But a subclinical hypothyroidism is not clinical, right? Subclinical का मतलब ये होता है कि asymptomatic होता है. So there is no symptom in subclinical hypothyroidism. ठीक है? So that is the knowledge you need to gain, right? यही knowledge जो है वो आपको family medicine में डेवलप करने की जरूरत है. नॉलेज के साथ स्किल्स डेवलप करने की जरूरत होती है, clinical skills, and then the diagnostic skills, so many things जो है वो you need to develop to be able to reach to a diagnosis. ठीक है? um, so again, how we talk to the patient, how we build a rapport with the patient, how we communicate to the patient makes a lot of difference in their healing, in how they respond to treatment, in how they respond to counseling. ये सब बड़ी important होती है, because we family physicians are patients advocates, right? अच्छा, ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है ना, ये बड़ा हॉट सवाल है. नाउ दैट यू नो कि एक फैमिली फिजिशियन डील्स विद द बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ डिजीज एंड प्रोवाइड्स पर्सन सेंटर्ड केयर, ये सब कुछ करने के बावजूद वी फील that there is no scope of specialty of family medicine in Pakistan. हाँ, शायद आज से 5 साल पहले दिस वाज ट्रू. ठीक है? बिकॉज रिकग्निशन नहीं थी फैमिली मेडिसिन स्पेशलिटी की. बट देन अराउंड मे बी 2-3 years बैक देर केम अ रेवोल्यूशन. हुआ ये कि फैमिली मेडिसिन, WHO ने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को पुश किया to begin family medicine approach in their primary care practices. उससे हुआ ये, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी स्लो है और अनस्टेबल भी होती है, बार बार चेंज हो जाती है, तो कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट हुई, कुछ पॉलिसीज नहीं बनी, लेकिन पूरा कंप्लीटली जो है वो हम एकदम टर्न नहीं कर पाए सिचुएशन को, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज कि
बिकॉज दे रियलाइज कि फैमिली मेडिसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि अंडर ग्रेड में 75 आवर्स ऑफ फैमिली मेडिसिन हैव नाउ बिन इंक्लूडेड इन द मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज में बेटा आलिया अब जो है वो 75 आवर्स हैं ऑफ फैमिली मेडिसिन इन 5 years। अब ये कौन पढ़ाएगा? आप गेस करिए कि इसमें से जो है वो फैमिली फिजिशियंस कितने होंगे, पूरे पाकिस्तान में फैमिली फिजिशियंस कितने होंगे तकरीबन। लेट्स से एफसीपीएस, एफसीपीएस कितने होंगे, एफसीपीएस इन फैमिली मेडिसिन कितने होंगे पूरे पाकिस्तान में? एनी गेसेस? वेरी फ्यू, कितने? गैस लगाएं एक। 500 नहीं है डॉक्टर नुमाना, 50 है, 50। 50। आर दे इनफ? पूरे मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज है, आई थिंक 150 मेडिकल कॉलेजेस, मोर देन 100 मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान। इन मेडिकल कॉलेजेस के सारे डिपार्टमेंट्स जब खुलेंगे फैमिली मेडिसिन के, तो ये क्या इनफ होंगे 50 एफसीपीएस? नहीं। तो कौन लोग होंगे जो यहाँ डिपार्टमेंट्स को चलाएंगे? फिलहाल एफसीपीएस की जगह एमसीपीएस चलाएंगे। एमसीपीएस वालों को जहां जहां डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स मिल रही हैं। लेट मी टेल यू अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस। कराची में जेएसएमयू, ठीक है, एसएमसी जो है, डीयूएचएस, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, पब्लिक सेक्टर की बात करी हूँ, और प्राइवेट सेक्टर में एकेयू, एलएनएच, जियाउद्दीन, इंडस, सिना, हर जगह पर जो है वो फैमिली मेडिसिन का अब दे आर डिमांडिंग फैमिली फिजिशियंस। ठीक है, यस, जेएसएमयू ने अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है। सो देर आर मेनी प्लेसेस इन कराची, लाहौर में भी इंडस हॉस्पिटल ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है फैमिली मेडिसिन का, एफसीपीएस का, एमसीपीएस का। इसके अलावा फातिमा मेमोरियल में ये प्रोग्राम है। देन वी हैव केपीके में जो है वो केएमयू, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर फैमिली मेडिसिन के रेजिडेंसी स्टार्ट हो गई हैं। देन इस्लामाबाद में वी हैव शिफा, ठीक है, एंड वी हैव सीएमएच। तो वेरियस, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन लाहौर। सो ये जगहों पर, हर जगह पर फैमिली मेडिसिन ये पिछले 2 सालों में आया है। इट हैज बिन देयर इन द लास्ट 2 to 3 years ओनली। सो यू कैन नॉट से के स्कोप नहीं है, और सैचुरेटेड भी नहीं है ये फील्ड, क्योंकि एफसीपीएस सिर्फ 50 हैं फैमिली मेडिसिन के, और एमसीपीएस मेरे ख्याल में 1500 होंगे, उसमें से कितने पाकिस्तान में है वी डोंट नो। So hardly 1500 MCPS family medicine in the whole country, and not sure how many are there in Pakistan and how many have migrated actually, right? So यहाँ भी जरूरत है, पूरी दुनिया में फैमिली फिजिशियंस की जरूरत है। प्राइमरी केयर में हर जगह पर गैप्स हैं। ऑस्ट्रेलिया वांट्स जनरल प्रैक्टिशनर्स, Ireland wants general practitioners, Saudi wants general practitioners, UAE wants general practitioners, ठीक है। So there are so many places which who are asking for family physicians, right? पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20% जो है वो स्पेशलिटी पाथवे पे जाते हैं लोग, और उसमें से 20% में से यू कैन इमेजिन कि फैमिली मेडिसिन इज लेस देन 1%। ठीक है, सो लेस पीपल आर इन द स्पेशलिटी। सो yes, that's SMC, that is such a sad situation, but then there are people who are working। बेटा आप देखें, यहाँ पर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कितने ईदी हैं, ये चीपा हैं, इंडस हॉस्पिटल को आप देखें, दे आर डूइंग सो गुड वर्क। तो देयर सो गुड सोल्स इन पाकिस्तान, जिसको देख के ना इंसान को ये फील होता है कि नहीं, अभी भी इंसानियत बाकी है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग हार्ड to help people in every, I don't know, government का issue है, we all know that, but still people are trying their best। So as doctors, हमारी, अगर हमने पाकिस्तान से ग्रेजुएट किया है तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है। या तो हम यहाँ पर लोगों को अपनी स्पेशलिटी के लिए काम करें, या हम बाहर जाते हैं तो शायद फाइनेंशियली सपोर्ट करें अपनी स्पेशलिटी को, अपने मुल्क को, सो किसी ना किसी तरीके से वी कैन ऑलवेज हेल्प। सो ये ना कुछ प्रोग्राम्स और ये है कि क्या क्या ऑफर हो रहे हैं पाकिस्तान में। सो मैंने जैसे आप लोग को ऑलरेडी बताया कि ये कुछ चीजें जो है ना वो RACGP ने रिसेंटली, MRCGP इंटरनेशनल को जो है वो रिकग्नाइज कर लिया है।
और उसकी वजह से a lot of family physicians are able to go to Australia, migrate to Australia. So without giving any exam, they can just वो जो pathway है उनका जिसपे उनको अपनी verifications and वो सब चीजें करानी होती है उसके through they can migrate to Australia. ठीक है, तो कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता है. सो MRCGP इंटरनेशनल वाले बहुत सारे लोग आर एक्चुअली नाउ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल. यूएई सऊदी वहां तो जाते ही थे. तो even if you are looking at your career elsewhere in the world, this specialty will help you. पाकिस्तान में रहे बहुत अच्छी बात है. आई होप कि आप तमाम को करियर अपॉर्चुनिटीज मिले एंड यू आर एबल टू स्टे, और आप लोगों के हालात भी ऐसे हों घरेलू डोमेस्टिक इन ऑल वेज के यू कैन गिव बैक टू पाकिस्तान, staying in Pakistan. But even if you can't, even if you migrate, try to give back to Pakistan in one way or the other. ठीक है ना. बिल्कुल डॉक्टर अली, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट है. प्राइमरी केयर, डेवलपिंग कंट्रीज, वी ऑल नो दीज सिचुएशंस, बट इट्स जस्ट दैट के हाँ मैं भी बता रही हूँ. सब सब चीजें आई एम टेलिंग यू. सो be happy about your specialty, be proud of who you are. You are making a difference in one way or the other. You are preventing disease. सबसे पहले तो आप prevent करें ना. आप disease prevent करें, आप complications prevent करें. हाँ वो चीजें जो होती नहीं वो किसी को नजर नहीं आती वो एक और बात है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है अगर तूफान आने से पहले आपने रोक लिया तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है कि वो बर्बादी मचाए, वो आ जाए और फिर बर्बादी से बचाने वाले को हीरो कहा जाए, या उस तूफान को जिसने आने से रोका है वो हीरो है. तो मेरे ख्याल में वी आर द रियल हीरोज, क्योंकि हम पेशेंट को उस स्टेट में आने से रोकते हैं जिसमें उसका खर्चा होता है, जिसमें उसको जो है वो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है, अलग अलग दवाएं लेनी पड़ती हैं. ठीक है, सो बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. एक और चीज का ख्याल रखें, कोशिश करें कि वेन एवर यू आर स्टडीइंग, ठीक है, जब आप फैमिली मेडिसिन के लिए पढ़ रहे हैं ना तो कोशिश करें कि फैमिली मेडिसिन के ही टीचर्स को अटेंड करें. क्योंकि देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ छोटी सी. अगर आप LFTs ऑर्डर कर रहे हैं पेशेंट को, आपने सोचा कि इनको वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, क्या पूरे LFTs ऑर्डर करने की जरूरत है, या इज देयर वन टेस्ट विच कैन हेल्प यू मेक अ डायग्नोसिस? इज देयर वन टेस्ट विच कैन हेल्प यू मेक अ डायग्नोसिस, या पूरे LFTs कराने? SGPT, यस. और आपको क्या पता है कि SGPT अगर 200-250 रुपए का होता होगा उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन अगर 200-250 का होता है तो SGOT भी इतने का ही होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी इतने का ही होता है बेटा, टोटल बिलिरुबिन भी इतने का ही होता है. तो आप एक पेशेंट के 2,000 रुपए LFTs पे खर्च करेंगे, उससे एक 250 रुपए का SGPT करा लें. ये कौन बताएगा आपको? ये आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बताएगा? नहीं बताएगा, वो कहेगा पूरा LFTs करो. ठीक है, आप कार्डियोलॉजिस्ट से अटेंड करोगे वो कहेगा पूरा लिपिड प्रोफाइल करवाओ. आपको पता है लिपिड प्रोफाइल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या बताओ? LDL. एब्सोल्युटली. जितनी गाइडलाइंस है LDL 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 50% रिडक्शन, LDL में इतनी रिडक्शन, LDL में उतनी, चलो ट्राइग्लिसराइड लगा लो. ठीक है, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड ये दो टेस्ट हैं जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. व्हाई डू यू नीड टू गेट द होल लिपिड प्रोफाइल, स्पेशली इन अ सिचुएशन वेयर द पेशेंट कैन नॉट इवन अफोर्ड? फिर आप करवा लेंगे तो वो दवा के पैसे नहीं होंगे उसके पास. सो यू हैव टू बैलेंस. इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जब भी आप पढ़े ना, फैमिली फिजिशियन से पढ़ें, ताकि यू गोइंग टू नो द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ how you can deal with patients in a developing country in the best cost effective method and be efficient as well. बिल्कुल सही बात है, करें इसको. Cat in the mirror. Some good imagination. Yes, I like that. Don't underestimate yourself. Dream big. Early detection can save life. Really? So you think this cat is a leopard? Believe in yourself. So what you think of yourself is more important than what others think of you. It's very, very important. So yes, your dreams define you. That's also a very good one, Dr. Simal. I like that. So जो है वो आप देखें, जो भी आपकी पेस है ना, whatever you're doing, uh, do it with the best of your capabilities and be proud of what you're doing. अपनी स्पेशलिटी के बारे में ना
लो मत फील करें, डोंट थिंक यू आर इन अ रॉन्ग स्पेशलिटी, यू कुड हैव डन बेटर। जो नहीं किया वो नहीं किया, वो आपके लिए था भी नहीं, ठीक है। अल्लाह हैज मेड योर ओन पाथ, अल्लाह हैज डिफाइंड योर ओन पेस। it's fine, whatever you're doing, whatever you're doing in your own capacity, in your own circumstances, that's the best you could do with your life, ठीक है। and it's fine, just keep on moving, that's it, ठीक है। so pathways में अब I hope you can follow the screen। पता नहीं पहले क्या क्या मिस किया तुम लोगों ने, खैर एनीवेज आई वाज स्पीकिंग सो मच के कुछ ना कुछ समझ ही गए होगे। So eligibility is MBBS and house job training is for 4 years। जैसे मैंने कुछ आप लोगों को इंस्टीट्यूशंस बताई है, उन इंस्टीट्यूशंस में मौजूद है। बहुत कम इसकी सीट्स होती हैं, पार्ट 1 करना पड़ता है FCPS पार्ट 1, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बेसिक साइंसेज आता है, तो आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है, और जॉब वॉब छोड़ के लीव लेके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ना बिल्कुल बेसिक साइंसेज आता है। लोगों ने 12-12 दफा भी अटेम्प्ट्स दिए और पास हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग लगे रहते हैं वो पास हो जाते हैं। सो अगर इफ यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान, if you want to build up your career in Pakistan, if you want to be a professor, if you want to look if you look up to me or people like me in family medicine, you want to come at that level, this is the degree for you, ठीक है। ग्रेट डॉक्टर फहीम, फहीम फहीम मुल्तान से, गुड। FCPS फैमिली मेडिसिन सवाल है कि यूके में और ऑस्ट्रेलिया में इज इट रिकग्नाइज्ड और नॉट। सो अच्छी बात यह है कि ट्रेनिंग जो होती है ना, आपकी ट्रेनिंग, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रिकग्निशन मिल जाती है उसको। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में 2 years की ट्रेनिंग रिकग्नाइज्ड है। आप FCPS करके कनाडा का एंट्री एग्जाम देके, जो कि MCCE है, वो दे के आप कनाडा में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है वो एक AMC एग्जाम पास करना होता है FCPS के साथ, और उसके थ्रू आपकी ट्रेनिंग रिकग्नाइज हो जाती है, तो वहां पर जाके आपकी जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमम हो जाती है, और FRA CGP आप वहां दे सकते हैं। अगर आपने FCPS के साथ MRCGP इंटरनेशनल भी किया हुआ है, तो MRCGP इंटरनेशनल की वजह से आप AMC जो ऑस्ट्रेलियन एग्जाम है वो दिए बगैर ही एंट्री ले सकते हैं, बट आपको जो पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट फिजिशियन की मिलती है, जो आप अंडर सुपरविजन काम करते हैं, और फिर वहां पे आप अपनी ट्रेनिंग करके और FRA CGP दे के कंसल्टेंट बन सकते हैं। FCPS की वजह से UAE में, सऊदी में, आयरलैंड में डायरेक्ट जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। सो ये जो है वो फायदा है FCPS करने का, और पाकिस्तान में तो इसका पूरा करियर पाथ है, ठीक है। इसमें इसमें कॉल्स भी होती हैं, बिल्कुल कॉल्स होती हैं, इमरजेंसीज भी लगती हैं, लेकिन कम होती हैं। अगर आप कंपेयर करें इंटरनल मेडिसिन या दूसरी किसी स्पेशलिटी के कंपेरेटिवली, तो देर आर लेस number of calls and less of work hours. So people who've taken FCPS part 1 multiple times, उनके लिए जो है वो ये एक मैसेज है, और इस मैसेज को भी कैप्शन कर दें प्लीज। आई वांट अ कैप्शन प्लीज। डोंट गिव अप, या। आरफा, मैंने इंटरनल मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन का डिफरेंस ना शुरू में बताया था, so you might have missed it, maybe you can get a recording। Yeah, perseverance pays off. Very good. You'll succeed finally. Don't give up hope. Work, 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 and you will succeed. I like it. You never know how close you are. So never give up on your dreams. Okay? You never know how close you are. You see? He was very, very close. Okay, na? So maybe next attempt में part 1 clear हो जाए, है ना। मे बी जो लोग MCPS का एग्जाम दे रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे, हो सकता है अगली अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। जो MRCGP एग्जाम दे रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे, हो सकता है उनका अगली अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, ठीक है। सो डोंट गिव अप होप। ओके, सो FCPS we've discussed this। MCPS के जो है वो दो पाथवेज हैं, ठीक है। MCPS के दो पाथवेज हैं, बिल्कुल MRCGP और MCPS दोनों का सिमिलर पाथवे है, ठीक है। MRCGP इंटरनेशनल की मैं बात कर रही हूँ, देखो MRCGP यूके और इंटरनेशनल दो अलग अलग डिग्रीज हैं। यूके यूके में होती है, इंटरनेशनल
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, साउथ एशिया में और दुबई में आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूके वाली यूके में जाके होती है और प्लैब दे के और फिर आपको उसमें वो मिलती है, ठीक है। सो एमसीपीएस की दो रिक्वायरमेंट्स है, या तो 5 years ऑफ प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस, जैसे आपने थोड़ा इंटरनल मेडिसिन में किया है काम, एज ए मेडिकल ऑफिसर आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपने जो है वो थोड़ी बहुत जनरल प्रैक्टिस की है, थोड़ा बहुत कहीं पर आपने किसी और स्पेशलिटी में काम किया है, 5 years की प्रैक्टिस है, तो इट इज गोइंग टू गेट रिकग्नाइज्ड एंड यू कैन टेक द एमसीपीएस एग्जाम। एग्जाम में दो पार्ट्स होते हैं, एमसीपीएस में भी और एमआरसीजीपी में भी। पार्ट 1 एमसीपीएस का थियोरी, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, और पार्ट 2 जो कि टॉक्स होता है, जिसमें क्लिनिकल स्किल्स का एग्जामिनेशन लिया जाता है, ठीक है। सो ये दो पार्ट्स हैं एमसीपीएस के। इसकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, यू नो अभी कुछ चीजें प्रोसेस में है, बट पाकिस्तान में एमसीपीएस जो है वो पीएमडीसी रिकग्नाइज्ड है, और एचईसीपी जाहिर है। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल, सेम पाथवे, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड नहीं, कोई शॉर्ट आंसर्स नहीं होते, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है, ओनली एमसीक्यूज होते। 5 years ऑफ एक्सपीरियंस या 2 years ऑफ ट्रेनिंग। 2 years ऑफ ट्रेनिंग इस वक्त जो है वो कोई भी अगर आपने ट्रेनिंग की है ना, तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। और एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग इंडस हॉस्पिटल में हो रही है इस वक्त, उसकी इंडक्शंस भी हो रही हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई देयर एज वेल, ठीक है। सो मैं महक को एक नंबर दे दूंगी, अगर आप लोग वहां अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो the experience here you are talking is clinical experience, yes beta, this is clinical experience। अगर आपने एज ए लेक्चरर सिर्फ पढ़ाया है तो आई डोंट थिंक दे वुड काउंट इट एज, जो है वो, मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसको एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, ठीक है। डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, ये सब सेम है। डिप्लोमा नाम देने से उसकी कोई वो चेंज नहीं होती, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होती, इट इज अ सेम। ऑनलाइन होते हैं जनरली ये, और ये इससे आपकी सिर्फ एक फैमिली मेडिसिन की बेसिस बनती है, अगर आप खास तौर पे बहुत अरसे से आउट ऑफ प्रैक्टिस है, या फिर आप एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस करते रहे हैं, 5-10 साल पहले, अपडेट नहीं है, अभी तक अपडेटेड नहीं है, तो दिस इज समथिंग जो कि आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। क्लिनिकल स्किल्स इसमें इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं और इसमें इतनी ज्यादा क्लिनिक्स नहीं होती हैं आपकी, ठीक है। इसकी अपॉर्चुनिटीज, यू कैन देखिए, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। इफ यू आर एबल टू नेटवर्क, ठीक है, इफ यू आर एबल टू नो व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू इन द सेम फील्ड, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। सो इट इज नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कि मैं यहां से यहां पहुंच गई या ये हो गया वो हो गया। नेटवर्किंग इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि यू गेट टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड हाउ टू मूव अराउंड। ऐसे घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं पता चलता। वर्कशॉप्स कंप्लीट नहीं है बेटा तो करे, ठीक है। एमसीपीएस का की रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वर्कशॉप्स करनी पड़ती हैं जो कि सीपीएसपी कराता है। वो वर्कशॉप्स जब भी कंप्लीट हो जाती हैं तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सपीरियंस पाथवे से जो एमआरसीजीपी और एमसीपीएस करते हैं उनके लिए आई एम ऑफरिंग अ कोर्स, ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस पाथवे से एमसीपीएस एमआरसीजीपी करना चाहते हैं, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास, या आज नहीं है 2 साल बाद हो जाएगा। सो ऑन 3 years, अगर 3 साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं विथ सीपीएसपी। और एमआरसीजीपी में 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। सो एमसीपीएस में क्योंकि वर्कशॉप्स करनी होती है ना, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसके बाद आप अगले 1-2 साल में वर्कशॉप्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एमसीपीएस का एग्जाम दे देते हैं। एमआरसीजीपी में आप डायरेक्टली अप्लाई करके डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एमआरसीजीपी का एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं होता। पढ़े बगैर और समझे बगैर के एग्जाम किस तरह देना है, क्या एक्सपेक्टेड है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एमआरसीजीपी इतना इजीली नहीं निकलता, इसीलिए लोग बार बार फेल होते हैं। और ये महंगा एग्जाम है, इसकी पेमेंट पाउंड्स में होती है। इस वजह से बहुत सोच समझ के जब आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो तब ये एग्जाम दें, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमआरसीजीपी पार्ट 1 इज 18 months, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज इनफ नहीं बेटा, 5 years का जो है एक्सपीरियंस चाहिए एमआरसीजीपी के लिए। 5 years स्पेशलिटी ट्रेनिंग भी एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन उसमें इंटरनल मेडिसिन तो होना ही चाहिए, ठीक है ना।
इसकी ना एमआरसीजीपी की जो वेबसाइट है ना, उस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी ट्रेनिंग एक्सेप्टेबल है। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे चले जाएं, उस पे आपको जो है वो पता चल जाएगा कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है उनको ना, कौन सी ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग नहीं मतलब एक्सपीरियंस कौन सा एक्सेप्टेबल है। आपने अगर कोई ट्रेनिंग की है तो उसको भी वो एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं, ठीक है, लेकिन 5 साल का इन ऑल होना चाहिए। सो एमसीपीएस की अपॉर्चुनिटीज मेनली सजीला पाकिस्तान में तो है ही। जैसे स्पेशलिस्ट आप हो सकते हैं, इंडस में स्पेशलिस्ट हैं, एकेयू में हैं, और जियाउद्दीन में है, यू नो देयर सो मेनी, सीनियर लेक्चरर, सीनियर रजिस्ट्रार तक की आपकी वो है, पोस्ट हो सकती है एमसीपीएस। और जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में अब पढ़ाने के लिए चाहिएगा कोई फैमिली मेडिसिन, क्योंकि 75 आवर्स ऑफ फैमिली मेडिसिन आ गए हैं, तो वो भी एमसीपीएस ही लोग होंगे जो ये पढ़ाएंगे फैमिली मेडिसिन, ठीक है। तो इस वजह से अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं और आती जाएंगी आगे आने वाले सालों में, क्योंकि वो 75 आवर्स पढ़ाने के लिए फैमिली फिजिशियंस हर मेडिकल कॉलेज को चाहिए, ठीक है। बीएलएस सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर्ड, हाँ बीएलएस वापस से आप अटेंड कर लें और अप्लाई कर दें एग्जाम के लिए, एमसीपीएस के लिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। MCPS certificate allows to acquire specialist family medicine position in UAE. That's right. Yes, yes, you can. If somebody wishes to work in Pakistan, then which one is better? FCPS, Maha, I already told you, FCPS can take you to places if you are having family medicine consultants, professors, assistant professors, associate professors as your role models, तो फिर आपको FCPS करना पड़ेगा। um दैट इज अमेजिंग, दैट इज गुड टू नो। डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर अयाज, ओके। मीरपुर से हैं आप, आजाद कश्मीर, एंड यू वर नॉट एबल टू अटेंड माय क्लास आफ्टर थियोरी एग्जाम इन सितंबर, but you have cleared your MCPS theory in your first attempt. That is great. That is good to know. दुबई में है एमसीपीएस, बिल्कुल अभी मैंने जवाब दिया उरूज के दुबई में एमसीपीएस एक्सेप्टेबल है। एमआरसीजीपी की ज्यादा वैल्यू है, मैं आपको बता दूं, दुबई में भी ना एमआरसीजीपी इंटरनेशनल मांगते हैं। अभी जो हमारी रिसेंटली शी इज ऑन ड्यूटी, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर कविता, शी हैज गॉन टू दुबई एंड शी इज गॉटन अ जॉब ओवर देयर, बट वी आस्क्ड हर टू जॉइन अस, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज ऑन ड्यूटी. So she recently cleared her MCPS in first attempt, then her MRCGP in first attempt, and now she is working in Dubai. और बड़ी स्मूथली माशाल्लाह उनको जॉब मिली। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल जिस मंथ किया था उनका, उनके दूसरे महीने में शी गॉट अ जॉब। सो आई थिंक शी कैन गाइड यू। यस, यू कैन पास योर एमआरसीजीपी की बात हो रही है। एमआरसीपी इज एन इंटरनल मेडिसिन डिग्री, ठीक है, मैं एमआरसीपी की बिल्कुल बात नहीं कर रही, एमआरसीजीपी इंटरनेशनल की बात करें। अच्छा, किसी ने सवाल किया था एमआरसीजीपी एफआरसीजीपी कैसे कर सकते हैं। सो एमआरसीजीपी इंटरनेशनल को जब 5 साल हो जाते हैं ना, तो फिर यू कैन अप्लाई टू आरसीजीपी, रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स, फॉर एफआरसीजीपी, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाता है, एमआरसीजीपी आपका एफआरसीजीपी में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 5 years। लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको पूरी करनी होती है। रिक्वायरमेंट्स एग्जाम की नहीं होती, आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए फैमिली मेडिसिन में, कुछ आपने लीडरशिप रोल्स किए हो फैमिली मेडिसिन में, तो आपको एफआरसीजीपी मिल जाता है। अभी मैं स्टडी मटेरियल बता रही हूँ, ठीक है, स्टडी मटेरियल, आई एम कमिंग टू इट। तो ये जो हमारे कोर्स में इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं ना, ये हर सैटरडे संडे होते हैं। और अगर इन केस आप किसी वक्त नहीं अटेंड कर सकते तो इसके रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको दे दिए जाते हैं, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। आम सी जो है वो एक लिंक दिया जाता है, वो लिंक पे आप क्लिक करते हैं, वो खुल जाता है, ठीक है। इट इज वेरी इजी पाथ टू फॉलो। तो हर सैटरडे संडे हमारा इंटरैक्टिव सेशन होता है, और वो इंटरैक्टिव सेशन में हम एमआरसीजीपी और एमसीपीएस दोनों की एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, रोल प्लेस करते हैं, ऑस्की एंड टोक्स प्रैक्टिस करते हैं। टोक्स एमसीपीएस में होता है, ऑस्की एमआरसीजीपी में होता है। हम दोनों की प्रैक्टिस, कभी टोक्स की प्रैक्टिस करते हैं, कभी हम ऑस्की की प्रैक्टिस करते हैं, और हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उन इंटरैक्टिव सेशन में। ये 6 महीने के इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। और इसमें सैटरडेज
या संडेज को ही ये सेशंस होते हैं, अराउंड 2 to 3 आवर्स, इन बिटवीन 2 3 आवर्स, शाम 5 बजे से लेके 8 बजे तक सैटरडे को यूजली ये सेशन हो रहा होता है। एंड लॉट ऑफ पीपल कैन अटेंड इट इजीली, ठीक है। एंड वी वुड सजेस्ट कि इंटरैक्टिव सेशन अटेंड करें रादर देन रिकॉर्डिंग ले। सही है। यस यू कैन डॉक्टर रिजवान, दैट इज पॉसिबल। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक फॉर एग्जांपल ये बता रही हूँ कि देखिए इस तरह के ना, इस तरह की आप लोगों के साथ वो शेयर की जाती हैं, स्लाइड शेयर की जाती हैं, आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर की जाती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनोलॉजी, मेडिकल एथिक्स, कंसल्टेशन स्किल्स एंड गाइनी ऑप, स्पीड। सो 21 मॉड्यूल्स होते हैं, और हर सैटरडे संडे जो है वो एक मॉड्यूल कंप्लीट कर दिया जाता है। प्राइमरी केयर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उस मॉड्यूल में करवा दिए जाते हैं, ठीक है ना। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, अब देखिए इसमें एक आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिलेगा। तो एमसीक्यूज भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हम दवाओं के नाम भी डिस्कस कर रहे होते हैं, आप लोगों को रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है बिफोर द सेशन ताकि आप लोग पढ़ सके। और ये रीडिंग मटेरियल लेटेस्ट आर्टिकल्स होते हैं, अपडेटेड गाइडलाइंस होती हैं, ये वो गाइडलाइंस होती हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन के बगैर अगर आप खुद गूगल से लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की 2024 या 23 की गाइडलाइंस आप खुद नहीं निकाल पाएंगे, बट वी प्रोवाइडेड टू यू। तो जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस होती है हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कवल, यू आर राइट। टोक्स होता है एमसीपीएस के लिए और ऑस्की होती है एमआरसीजीपी के लिए। टोक्स 7 मिनट्स का होता है, उर्दू में होता है। ऑस्की 10 मिनट्स की होती है, इंग्लिश में होती है, ठीक है। और ये पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, रोल प्ले होता है। किस तरह का रोल प्ले होता है ये भी हम प्रैक्टिस करते हैं। सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस, कि जैसे ये हमारी एक बहुत ही प्यारी, बहुत मैं कहूंगी कि लायक कैंडिडेट है, और इस तरह से ये एक केस सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है। और सो यू सी इट्स जस्ट लाइक वन टू वन कंसल्टेशन स्किल्स भी आप लोगों को सिखाई जाती है, एमआरसीजीपी की, ऑस्की की प्रेपरेशन भी कराई जाती है। सो इट्स यू नो बाय द एंड ऑफ 6 months यू गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थियोरी, नॉलेज आ जाती है, स्किल्स आ जाते हैं, कंसल्टेशन स्किल्स आ जाते हैं, और जो एग्जामिनेशन स्किल्स होते हैं उसके लिए वीडियोस शेयर की जाती हैं, और वो मैं अपनी खुद की वीडियोस शेयर करती हूँ, कोई गूगल से निकाल के नहीं। और फिर हम टॉक्स की प्रेपरेशन जब करते हैं तो उसमें इन पर्सन आके भी आप क्लिनिकल स्किल्स अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यूके में नहीं डॉक्टर अली इमरान, मैं बार बार कह रही हूँ, यूएसए और यूके में एमआरसीजीपी इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। ओके सो again, this is some feedback of so many of our trainees. I think a few of my trainees are here as well. Is any of my trainee here? Somebody just said that they passed talks, and Sadaf, I think Sadaf Azam, are you here? One of anybody, if Dr. Ayaz, Kaval is also here. So, Kaval, if you can just switch on your audio and let us know how was your experience. और डॉक्टर यास, अगर आप थोड़ा सा हमें लोगों को, दूसरे लोगों को बता सके कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कोर्स के, आपने जितने भी मॉड्यूल्स लिए। अच्छा, पूरा जरूरी भी नहीं कि आप पूरा कोर्स लें,
आप मॉड्यूल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, या आप सिर्फ ओबीजीवाइन लेना चाहते हैं। बहुत सारे मेल डॉक्टर्स होते हैं, उनकी ओबीजीवाइन वीक होती है, कुछ लोगों की पीड्स वीक है, तो आप सिर्फ पीड्स लेना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। या आप बहुत सारे मॉड्यूल्स लेना चाहते हैं, तो बेहतर ये कि पूरा कोर्स ले लें, क्योंकि वो आपको ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज बेटर, क्योंकि फिर रीडिंग मटेरियल भी सारा मिलेगा, एंड यू नो एवरीथिंग यू गोइंग टू गेट। और बाकी रिकॉर्डेड सेशंस ले लें अगर सारे अटेंड नहीं भी कर सकते हैं तो। राइट। सो okay, H, who are you, please, if you can name yourself, and you are midway in the course. So anybody who has Dr. Hira. Hira, can you just switch on your audio, not your video, please, but just your audio, and if you can just talk about the teaching, ताकि थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो जाए। आई थिंक पीपल आर वेरी एप्रीहेंसिव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह हम कनेक्ट कर पाएंगे, यू नो, किस तरह हम सीख पाएंगे। एलिया का क्वेश्चन है, इज डूइंग क्लिनिकल ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट? देखिए, ट्रेनिंग का हमेशा फायदा होता है। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं, दैट इज मच बेटर देन टेकिंग एमआरसीजीपी और एमसीपीएस थ्रू द एक्सपीरियंस पाथवे। एक्सपीरियंस पाथवे बेसिकली ना एक ट्रांजिशनल फेज है हमारा, क्योंकि वी डोंट हैव इनफ फैमिली फिजिशियंस इन पाकिस्तान। तो अभी ना हमने उसको थोड़ा सा इजी रखा हुआ है पाथवे को, कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, और अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं है ना ट्रेनिंग की इतनी, तो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आपको ट्रेनिंग की, तो आप एक्सपीरियंस पाथवे से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले लें। लेकिन ट्रेनिंग की पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन एक डिग्री ले लेने से पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप एमआरसीजीपी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू भी ले लेते हैं, तो भी उसको रिकग्नाइज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के पाथवे में, दुबई में, यू नो। सो देयर सो मेनी कंट्रीज विच आर रिकग्नाइजिंग एमआरसीजीपी इंटरनेशनल एज सच। ठीक है, और एमसीपीएस को भी इसी तरीके से रिकग्निशन मिल जाती है। जैसे अगेन आई वुड टॉक अबाउट डॉक्टर कविता, उन्होंने दोनों ही एक्सपीरियंस पाथवे से किया है। शी इज नॉट गॉटन हर सेल्फ एनी ट्रेनिंग, बट शी गॉट अ पोजिशन इन दुबई। ठीक है। Okay, so there is somebody here, Dr. Elia, Dr. Sadaf Amir. Okay, so Dr. Sadaf has attended our sessions, and she has also, Alhamdulillah, cleared her MCPS and MRCGP in the first attempt. Right, so Sadaf has written it in the chat box. I'm sure a lot of people are shy to talk and maybe not in the right condition to switch on their videos and audios. Right, so can you work as a consultant after MCPS? Yes, specialist consultant ही तो होता है ना, अगर if you are able to work as a specialist, so even that is, yeah, शाइस्ता, ये सुन ले, can you hear her? ओके, सो ये आपको आवाज आ रही थी, ये हमारी डॉक्टर शाइस्ता नौरीन है। शी इज ऑल्सो वेरी वेरी capable doctor, and she also cleared her MCPS, FCPS in the first go. So there's so many, you know, examples, so many examples. सो ये ना आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज है फैमिली मेडिसिन में, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस भी देखिए, हर किसी का नहीं चलता। यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू बिल्ड अ रैपो विद द पेशेंट, हाउ टू टॉक टू योर पेशेंट, एंड सेकेंडली क्लिनिकल स्किल्स और नॉलेज भी बिल्कुल आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन, यू नो, डू योर प्राइवेट प्रैक्टिस इन द राइट वे। पुराने जमाने की बात और थी, जब पेशेंट्स हमारे इतने अवेयर नहीं थे, तो सब जीपीस चल जाते थे। रूरल में अगर आप काम कर रहे हैं किसी बहुत ही रिमोट एरिया में, तो शायद आप ऐसे ही चल जाएंगे। लेकिन अर्बन जगह पे काम करने के लिए यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू हैव द नॉलेज, स्किल्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आप कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिशावर में काम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू हैव दैट स्किल्स। राइट, सो जरूरी है कि फैमिली मेडिसिन की पोस्ट ग्रेजुएशन करें। हाँ बिल्कुल, गूगल पेशेंट्स आने लगे हैं हमारे पास। ठीक है, सो युसरा, कौन सी चीज के लिए आप इंस्टीट्यूशन पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली, मुझे बताइए। क्या ट्रेनिंग पाथवे के लिए पूछ रहे हैं, या किसके लिए पूछ रहे हैं, और किस ऑफर 2 ईयर ट्रेनिंग? कराची में, लाहौर में, कहाँ पे? बी स्पेसिफिक, अदर देन AKU इंडस।
2 ईयर फैमिली मेडिसिन की एमसीपीएस की ट्रेनिंग सिर्फ एकेयू और इंडस ही ऑफर कर रहा है, और इनफैक्ट एकेयू भी एमसीपीएस ऑफर नहीं करता, सिर्फ इंडस ऑफर करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रेनिंग की सीट्स ही नहीं है। कराची में भी एमसीपीएस की ट्रेनिंग की सिर्फ हर साल 2 सीट्स होती है इंडस के पास, उस पे 100 लोग, 200 500 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट वर्थ इट कि आप वो 2 सीट्स के लिए जो है कुछ भी ना करें। सो यू हैव टू टेक अप समथिंग, हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो यू शुड हैव एन ऑल्टरनेट पाथवे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एमआरसीजीपी एमसीपीएस के लिए अप्लाई कर दें। इंडस लाहौर भी ऑफर कर रहा है एमसीपीएस इन फैमिली मेडिसिन, दैट्स राइट, लाहौर कर रहा है बिल्कुल। एफसीपीएस की 3 सीट्स होती हैं, 4 सीट्स होती हैं एवरी ईयर। हर जगह पे डिफरेंट है। लियाकत नेशनल में सिर्फ 1 सीट होती है एवरी ईयर। एकेयू में 4 सीट्स होती हैं मे बी। इंडस में भी 4 सीट्स होती होंगी हर साल, सो हर इंस्टीट्यूशन की डिफरेंट है सीट्स। तो कितनी सीट्स होती होंगी टोटल मिला जुला के भी? 10 12 सीट्स पूरे पूरे कराची में। दैट इज नॉट इनफ, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपने पार्ट 1 किया हुआ है तो इट इज वर्थ इट टू ट्राई। लम्स में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ सिद्रा। लम्स में वी हैव डॉक्टर जहीर हु इज अ फैमिली फिजिशियन एंड हु इज अ ट्रेन्ड एफसीपीएस फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। बट टाइम लगेगा वहां पे स्टार्ट होने में ना, फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं स्टार्ट कर सकते। एमसीपीएस को स्टाइपेंड दी जाती है बिकॉज दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। उनकी नाइट्स भी, उसकी उनकी नाइट्स तो नहीं लगती, लेकिन नाइट्स इंडस में तो नहीं लगती, लेकिन ये कि बहरहाल उनको सुबह से लेके इवनिंग्स होती हैं उनकी, और उनको स्टाइपेंड मिलती है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना वो, इसीलिए। एमसीपीएस इज एक्सेप्टेबल इन कनाडा? नो। कनाडा में सिर्फ ट्रेनिंग चलती है और 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। FMPT by Indus, it is a certificate course like a diploma. तो जो मैंने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स का बताया वो FMPT पे अप्लाई होता है। इट इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑन विच यू कैन बिल्ड अप। तो अगर आप FMPT कर लेते हैं तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर MRCGP इंटरनेशनल थ्रू द एक्सपीरियंस पाथवे या थ्रू द ट्रेनिंग पाथवे भी, ठीक है। श्योर। H, who are you? Hira ना? Hira, you can switch on your audio please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अभी तो खैर मेरे 3 मंथ्स हो गए आपके कोर्स में, बट जो रीजन था, मुझे लगता है कि सबको जो यहाँ पर ऑडियंस है एटलीस्ट इतना जरूर पता होना चाहिए कि जब हम लोग डिफरेंट जगहों से एक्सपीरियंस करके आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव बीन अंडर ट्रेनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल स्पेसिफिकली हु हैव जस्ट डन एक्सपीरियंस, आइदर जीपीज और मेडिकल ऑफिसर्स और इवन द वंस हु वांट टू स्विच एंड दे वांट टू कम इनटू जनरल मेडिसिन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बिकॉज मेरी खुद एक्सपीरियंस पाथवे का जर्नी रही है और मैंने खुद एज अ जीपी प्रैक्टिस किया है फॉर 7 years। तो आई नो कि व्हेन आई ज्वाइन द कोर्स एंड फ्रॉम द डे आई डिड which was day 1 till now, even when I'm halfway there, बहुत डिफरेंस आया इन द वे आई अप्रोच टूवर्ड्स सॉल्विंग द केसेस दैट आई यूज्ड टू डू बिफोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अगर ट्रेनिंग नहीं होती और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लाइक एन ऑफिशियल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन समथिंग टू बेसिकली गेट क्योर्ड, आपकी जो डायरेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हैपहैजर्ड होती है। यूर बेसिकली नॉट इन लाइक द राइट वे, आप एक सिंथ में नहीं चल रहे होते हैं। तो वो डायरेक्शन लेने के लिए क्योंकि आपका कोर्स वैसे तो 6 months का है, बट इट्स वेरी डिटेल्ड एंड इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिकली स्क्वीज्ड इन वेरी नाइसली। तो एक तो समझ में बहुत अच्छे तरीके से आती है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है, और आपका अप्रोच जो है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है टुवर्ड्स द पेशेंट, वो बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाती है। और दूसरी चीज जो ज्यादा आई थिंक बेनिफिशियल होगी फॉर पीपल हु आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान, अगर आप बाहर पाकिस्तान से काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान के एमसीपीएस या एमआरसीजीपी इंटरनेशनल देना है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको गाइडलाइंस, जो कि ऑब्वियसली एग्जाम पैटर्न जिस पर बेस्ड होता है, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंटरनली जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान में काम करते हैं उनको वैसे ही पता होती है, लेकिन जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं वो उसको उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो एक ब्रशिंग या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैम के कोर्स का सिर्फ ये जो एक सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, and she's always there to help even while we're taking the lectures, even when we have taken information and we want to discuss it later on, she's always there hands on to explain it to us. तो वो जो polishing है, which will allow everyone, most of the people who have I think already has attempted or will be attempting in the near future, उनके लिए बहुत helpful होगा कि जब वो attempt करेंगे तो वो easily clear भी कर लेंगे। तो it's basically the right investment in the right time and place, so that's going to be very fruitful, so that's why I wanted to tell everyone कि experience pathway वालों को जरूर लेना चाहिए ये course।
इंशाल्लाह हिरा, एंड दैट इज द होल पॉइंट। देखिए एक्सपीरियंस पाथवे वाले, अगर आप एक्सपीरियंस पाथवे के थ्रू एमआरसीजीपी एमसीपीएस कर रहे हैं ना, तो यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, है ना। और हम्म। इनफैक्ट अपडेट भी करना है ना खुद को, अपनी प्रैक्टिस जी। को भी इम्प्रूव करना है। इट नथिंग, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट द एग्जाम, इट्स ऑल्सो हम्म। अबाउट इम्प्रूविंग योर प्रैक्टिस। क्योंकि जब प्रैक्टिस इंप्रूव होगी ना, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अपॉर्चुनिटीज हम्म। आपके लिए पूरी दुनिया में निकलेंगी। दैट ट्रू। इज द पॉइंट, है ना। पॉइंट सिर्फ हम्म। एमसीपीएस पास कर लेना या एमआरसीजीपी पास कर लेना नहीं होना चाहिए। पॉइंट शुड बी टू बिकम अ बेटर डॉक्टर, एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर, जो जिसको सारी अपडेट्स पता हो। और इस साल जब हम्म। कोर्स हो जाए, एमसीपीएस आप कर लें, एमआरसीजीपी आप कर लें, तो अगले साल जो अपडेट्स आएंगी वो आपको कैसे रिट्रीव करनी है, वो कैसे पढ़नी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जैक्टली। स्पून फीडिंग के मैंने एक दफा खिला दिया और मसला खत्म हो गया। हर डॉक्टर को, नॉट ओनली जनरल प्रैक्टिशनर्स, बल्कि हर स्पेशलिटी को अपने आप को अपडेटेड रखना जरूरी है, वरना यू कैन नॉट बी बेनिफिशियल टू द पेशेंट। आज से 10 साल पहले जो चीजें अप्लाई होती थी, थियोफ्लिन दी जाती थी एस्थमा के लिए, अब इट इज नो मोर इंडिकेटेड। अभी भी हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स फीवर के लिए डेल्टा कॉटिल और इंजेक्शन डेक्सामेथासोन लगा के भेज देते हैं पेशेंट को। इज दैट व्हाट द एविडेंस सेज? नहीं, शायद उनको बेचारों को पता भी नहीं है, बिकॉज दे हैव नेवर स्टडीड बैक एंड नो वन इज देयर टू टीच देम मे बी। राइट, सो यू हैव टू बिकम अ बेटर डॉक्टर एंड दैट शुड बी द मेजर गोल। तो इसको कैप्शन करें कि बेटर डॉक्टर तो बनना ही है, लेकिन ये कैप्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। Yes, work smart, not just hard. So work hard. Yes, you should, everybody should work hard, but don't only work hard, but work smart. और वो जो स्मार्ट वर्क है ना, वो हर वक्त काम करने से, हार्ड वर्क करने से नहीं आता। स्मार्ट वर्क आता है जब आपके फोकस हो। भाई मैं इस वक्त ये सोचती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 साल में मैंने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है। आपका फोकस ऑफ वर्क बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, या मेरे सारे फैमिली यहाँ पर हैं, मेरे फैमिली टाइज हैं, मैं आज से 10 साल बाद तक तो यहाँ से मूव नहीं करना चाहती। मेरा बिल्कुल फोकस ऑफ माय स्टडी, फोकस ऑफ माय करियर विल चेंज। राइट, सो यू हैव टू नो व्हाट यू रियली वांट टू डू। मेरे हस्बैंड बहुत कमाते हैं, अच्छा खासा घर चल जाता है, मैं बच्चों को देखूंगी। Focus changes, right? I want to contribute in my हाउस होल्ड फाइनेंसेस। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दूं अपने घर में, और मैं अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपनी और अपने बच्चों की बेहतर बनाऊं। द गोल चेंजेस, राइट। आपकी, आई एम नॉट सेइंग ये ठीक है, ये गलत है, ये है, बट वट एवर यू थिंक, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, हैव एन एंड इन माइंड कि मैंने आज से 5 साल पहले वेयर डू आई सी माई सेल्फ, जहां पहुंचना है ना, उसके लिए आज मेहनत करना शुरू करो। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट अब पीपल, अगर आप लोग नहीं भी कोई कोर्स में इंटरेस्टेड हो, नहीं भी ज्वाइन करना चाहें, एंड यू वांट सम जो है वो, कोई बुक चाहिए आप लोगों को जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिले फैमिली मेडिसिन अप्रोच का, या पीपल हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड कोर्सेज एंड नाउ एन रूट टू टेक देयर एग्जाम्स, सो यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दिस बुक फ्रॉम महक। तो ये बुक जो है वो आप लोगों को डिलीवर की जा सकती है विद द डिलीवरी चार्जेस। इट हैज 50 केसेस, इट हैज 100 MCQs एंड लॉट ऑफ अपडेट्स, so you can order this if you like to. Okay, so with this, we come to the end, and I hope I have been able to clear all your queries. And Alhamdulillah, I am on time. बिल्कुल 1 घंटे में ये सेशन खत्म हो रहा है। एंड कोई भी और सवाल है आप लोगों के, तो यू कैन आस्क। यस, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग। आप महक से वो करेंगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको महक से मिलेंगी। कोई मॉड्यूल अटेंड करना है, महक को बताइए। पूरा कोर्स लेना है, महक को बताइए। टोक्स आप लेना चाहते हैं सिर्फ टोक्स की प्रैक्टिस के लिए, महक को बताइए। ऑस्की की प्रैक्टिस फेब्रुअरी में, इंशाल्लाह जनवरी फेब्रुअरी में हम ऑस्की के वो सेशन स्टार्ट करेंगे। टोक्स के अभी हम करने जा रहे हैं नवंबर से। सो if you want to take talk session or anything, you can just let Mehak know, and she's going to help you out. Um,
ट्रेनिंग तो बेटा कहीं की भी अच्छी है, एफसीपीएस की ट्रेनिंग जहां से मिल जाए ना बेटा कर लो। इंडस की ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इंडस में सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और इंडस में हमारे जो फैकल्टी हैं, ही इज एमआरसीजीपी यूके, डॉक्टर शर्जील जफर इज लीडिंग द इंडस प्रोग्राम फॉर फैमिली मेडिसिन, एंड ही इज अ गुड टीचर। सो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ फैमिली फिजिशियंस आपको मिल जाएं, और पूरा फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट है वहां पर। सो आई थिंक लाहौर में इंडस इज अ गुड ऑप्शन इफ यू कैन गेट देयर। और 2 ईयर की ट्रेनिंग इंडस में, ये नवंबर में, अभी नवंबर में ही मेरे ख्याल में इसकी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, एमसीपीएस की बात करी हूँ। और एमआरसीजीपी की भी अभी चल रही है, तो अगर आपने एमआरसीजीपी भी करना है तो फिर आप जो है वो इंडस के बहुत सारी आपको वो मिल जाएंगी। महक से पूछ लीजिएगा, आई एम गोइंग टू सेंड हर द रेफरेंस, तो यू कैन। Sorry, एंड madam. Assalamu alaikum. जी तहसीन, अस्सलाम वालेकुम। Sorry, I joined late. Some guest came. That's why. That's why I want to appear. I cleared my MCPS examination this year. Now I want to appear in MRCGP next year. Not बताइए। so. My session is finished. Batch 6. How can I communicate with you? Then what? महक के थ्रू, महक के थ्रू। Okay, this book will be enough, doctor. This. ये बुक पे ना सारे केसेस नहीं है बेटा, इसमें ना 50 केसेस है। सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग के इससे अभी ज्यादा केसेस हम और कर ले। सो 50 मोर केसेस एटलीस्ट, एक और वो कर ले। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम जेएसएमयू में नाइट ड्यूटी होती है एमसीपीएस की ट्रेनिंग में जिना में? जेएसएमयू में क्या एमसीपीएस की ट्रेनिंग नहीं होती, एफसीपीएस की होती है। एमसीपीएस की नहीं होती है? अच्छा जी। BLS नेसेसरी इफ आई अपीयर्ड इन थियोरी वंस इन 2022, नहीं मेरा नहीं ख्याल है। BLS की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने ऑलरेडी एमसीक्यू में अपियर, आपने थियोरी पास की हुई है तो, या अपियर हुए हुए हैं तो आई डोंट थिंक। प्लीज जो है वापस से करिए, 2022 में करके 2 साल से क्यों छोड़ के बैठे हुए। रीअपियर होइए और जल्दी से उसको क्लियर करें। व्हेन यू ऑलरेडी अप्लाइड, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वेटिंग। टोक्स प्रैक्टिकल एग्जाम, मॉक एग्जाम कंडक्टेड एट कराची। जी डॉक्टर उरूज, बिल्कुल इसी तरह होता है कि टोक्स की प्रैक्टिस ऑनलाइन होती है और फिर एक ऑन साइट सेशन भी होता है। टोक सेशन थियोरी से पहले नहीं होती बेटा, थियोरी के बाद ही होती है। तो टोक्स अभी अभी सेशंस होंगे टोक्स के, क्योंकि दिसंबर के एंड में जो है ना वो टोक्स का एग्जाम है। ठीक है, बट इफ एनीबडी वांट्स टू टेक इट दे कैन। एमसीपीएस एंड एमआरसीजीपी, एमआरसीजीपी इंटरनेशनल का कोर्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एमसीपीएस थोड़ा हल्का एग्जाम है, मतलब इन द सेंस इजियर है। एमआरसीजीपी थोड़ा सा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग है, आई वुड से नॉट डिफिकल्ट बट चैलेंजिंग है। लेकिन जो हमारी अपडेट्स जो मैं आप लोगों को देती हूँ ना, जो एवरी सैटरडे संडे जो कोर्स होता है, उसमें एमआरसीजीपी के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। तो एमसीपीएस के लिए आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो आई प्रिपेयर यू फॉर एमआरसीजीपी, बट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एमसीपीएस डायरेक्टली। रेजिडेंसी में ना सीट मिल जाती है। इफ यू रियली वांट टू डू फैमिली मेडिसिन तो आपको सीट एफसीपीएस में भी मिल जाती है, बिकॉज देर सो मेनी पीपल जो इंटरनल मेडिसिन के होते हैं ना, वो फैमिली मेडिसिन में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको सीट्स नहीं मिलती है। क्योंकि उनको इंटरनल मेडिसिन में सीट नहीं मिलती है तो वो फैमिली मेडिसिन में आते हैं। मगर जो लोग शुरू से फैमिली मेडिसिन एम कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई डिप्लोमा अटेंड किया हुआ है, या आपने कोई कोर्स अटेंड किया हुआ है, या आपने एमसीपीएस दे दिया है, और फिर आप एफसीपीएस के लिए अप्लाई करते हैं पार्ट 1 देके, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इंडक्शन बहुत हाई हो जाते हैं। बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन फैमिली मेडिसिन एंड डोंट नॉट कम इनटू फैमिली मेडिसिन बिकॉज दे डिडंट गेट अ स्पॉट समवेयर एल्स। तो आई थिंक ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, महक का नंबर, महक अपना नंबर जो है यहाँ पे पोस्ट कर दे प्लीज। प्लीज गिव योर नंबर, चैट बॉक्स पे पोस्ट कर दे फॉर एवरीबडी। एंड 0341215781 ठीक है। सो शी इज पोस्टेड इट इन द चैट बॉक्स, इफ यू वांट यू कैन टेक इट। एंड विद दैट I am going to say goodbye to everyone, and hope all of you can do in life what you really want to do and succeed and be happy. ठीक है, at the end of the day
बी हैप्पी, ठीक है, दैट इज द होल पॉइंट। अभी भी सवाल लोग कर रहे हैं, डज सीपीएसपी ऑफर एफसीपीएस पार्ट 1 इन फैमिली मेडिसिन और डू वी हैव टू गिव एग्जाम इन एनी अदर अलाइड स्पेशलिटी? किसी भी स्पेशलिटी में आप एग्जाम दे सकते हैं पार्ट 1 में। आपने ओबीजीवाइन में दिया हो, मेडिसिन में दिया हो, जिसमें भी दिया हो, आप फैमिली मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल के इंस्टीट्यूशंस को स्पेसिफिकली तो सिर्फ इंडस ही रिकग्नाइज्ड है, लेकिन वो लोग 2 साल की ट्रेनिंग अगर कहीं और की भी हो और स्ट्रक्चर हो तो वो कर लेते हैं उसको एक्सेप्ट, ठीक है। रिटन एग्जाम कब होता है एमसीपीएस का? ये सारी चीजें ना आप महक से पूछ लीजिएगा, शी इज गोइंग टू बी एबल टू गाइड यू बेटर। मैं मंथ्स और टाइम और डेज के को सब इधर उधर कर दूंगी, ठीक है। सो शी इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू इट, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।